Good morning, all of you. Good morning, sir. The, Good morning, sir. good morning. Today is the topic for discussion is a flame scanner. It is a electronic instrument. How many guys are there in from electronics or mechanical or electrical? Hello. Yes, sir. How many guys are there? How many guys are there in electrical or electronics or mechanical? It's approx 50% students are electrical and 50% are from mechanical. Because it is an electronics instrument, so electronic instrument is easy for the electronics people, but the person who belong from mechanical or other branches, this session is tough for them. But don't nervous, just try to understand what is the theme and concept of this flame scanner, why we are using this flame scanner, and what is the purpose of this flame scanner, and what is the role and principle of this flame scanner. So student, as this name indicates, is the flame scanner. Flame scanner scan करता है flame को. Okay, flame. What is the flame? Like you know about the boiler. You know very well in the after the training. Hello. Yes, sir. आप पीछे से बोलते रहना, मुझे पता चलता है ना कि आप लोग कनेक्शन में हैं, नहीं तो नहीं बोलेंगे हाँ, तो फिर sir. मुझे उससे क्या है, मुझे भी थोड़ा बूस्टअप मिलता है. So, students, you know very well know about that the flame. What is the flame? Actually, you know about the boiler. Boiler में Yes, sir. जब when the coal igniting, it show a flame. मतलब एक flame दिखती है. Flame क्या? गैस की flame. Boiler में कोयला जलता है उसकी flame. You know very well. So, you know about the automation and control. When a desk engineer sit in the control room, how he can predict that the how much is the flame intensity in boiler, or how much have frequency of that. कंट्रोल रूम में जो आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, रोक दीजिएगा मेरे को. Okay, sir. each of the student, मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ, इंग्लिश में बोल रहा हूँ. Each of the student where this concept not clear, please stop me there. Okay. So you know about the flame. So I am telling you that uh, how a how a engineer can predict in control room, who are sitting in control room, that how much have intensity and frequency of the coal which is burning in the boiler. Okay. वो कैसे प्रेडिक्ट करेगा कि मेरा बॉयलर में कोयला जल रहा है, उसकी फ्लेम की इंटेंसिटी क्या है और फ्लेम की फ्रीक्वेंसी क्या है. ओके. So guys, a flame scanner is used to see basically two things. One is the coal frequency, one coal intensity. Okay. And when we taking gun means when you when you do boiler light up, then you initially use a gun. Gun is used for the oil. So guys, oil intensity and oil frequency is always high as compared to the coal frequency and coal intensity. Each and everything we will discuss later on, but basically you understood the concept of the flame scanner, that what is the work of the flame scanner, how it is used, and what is the importance of this scanner. You each and every one clear or not? Yes, sir. Uh, Yes, sir. uh, okay, I get you only 4 whys. It means that there are less number of people, or so mechanical electrical people also can understand this, because the electronic part is not starting there. I'm just telling you the importance of the flame scanner, what is the role of and principle of the flame scanner. As you know, this is the electronics instrument. Its whole construction is based on the electronics. Okay. uh, so let we start that yeah, actually flame scanner is a huge topic. uh, electronics people can understand deep in deep, but a mechanical people can do try to learn this with the help of my lecture.
Okay. So I will discuss the construction and principle of this flame scanner. Okay, first of all, one student, please tell me uh, the what is the flame scanner and what is the role of the flame scanner? What is the importance of the flame scanner? Firstly, one person tell me. Sir, flame scanner जो fire वाला होता है intensity को catch करता है. Speak loudly. Speak loudly. I don't get your voice proper. Please speak loudly. Sir, जो fire वाला होता है boiler उसकी intensity को catch करता है उसको show करता है. Okay. What's your name? So Srivas. Okay. You are belong from electrical or which branch? Sir, electrical and electronics. Electrical electronics. So this session is very clear to you. I think after when I will start. But mechanical student, don't lose their hope. I will fully try to clear you each and everything. You just try to understand, and after that, doing net search on each and every topic and clear that. Okay, I will start. So, guys, this is the presentation. I open the presentation because this presentation is visible or not? ना सर. This presentation is visible? No sir. Because I click on share screen. Okay. और अभी तक नहीं हुआ है. एक मिनट, मैंने जूम पे शेयर स्क्रीन पे मैंने क्लिक किया. हाँ, क्लिक किया ना सर. वो आप उस टॉपिक के ऊपर जाइए जो पीपीटी खुला हुआ है, और नहीं तो एकदम नीचे में देखिए जो पॉपअप खुला है, नीचे में जो शेयर बोल के जो ऑप्शन है ब्लू कलर का, उसमें क्लिक कीजिए. पूरा आपका जो विंडो है ना वो खुल जाएगा सर. उसमें आप जो भी चाहते हैं वो उसको खोल सकते हैं. ये मैंने शेयर को मैंने किया. हाँ सर. और यहाँ पे ये आ गया. हाँ, ये शेयर हुआ? नहीं सर, अभी तक नहीं हुआ है सर. थोड़ा टाइम. हाँ सर, अभी हो रहा है. हो रहा है? हाँ, हो रहा है. हाँ, आ गया सर. ओके सर उसको स्लाइड व्यू में कर दीजिए ना सर. बड़ा स्क्रीन हो जाएगा. यहाँ पे क्लिक करूँ? सर वो एकदम टॉप में देखिए फ्रॉम करंट स्लाइड दिया हुआ है. हाँ, यस यस, आ गया सर. So students, you are ready for the learning session? Yes sir. Yes sir. As you, this one is the PPT just for your help. As you know that flame scanner is the sensing device which is used to sense the flame which is igniting, which a coal igniting boiler. So ये जब बॉयलर में कोयला जलता है तो उसको सेंस, व्हेन अ पर्सन सिटिंग इन द कंट्रोल रूम इन रिमोट एरिया, हाउ ही कैन visualize that how much he have intensity of coal. Maybe the coal is poor, maybe coal is a very high GCV coal. So when the quality of the coal is a very high GCV, so the quality of coal is very good. So intensity and frequency of the coal is very good. And if intensity of the coal is very poor, like GCV gross calorific value. GCV it is a measurement which indicates the property of the coal, that coal is fully burned, fully energized or not, fully give energy or not. So when a high GCV coal burn in the boiler, then it give much more intensity and frequency. When there is a less GCV coal, so it give less intensity and less frequency.
So a person who is sitting in the control room, with the help of this, he can visualize that how much किस क्वालिटी का कोयला मेरे बॉयलर में जल रहा है. Okay. So this is the picture, guys. There are the 6 elevation of the there are the 3 elevation of the flame scanner. See here, this is your burner, where you can fire the coal in the boiler and take the oil gun, and also you can visualize this whole thing in boiler. Boiler के अंदर आग जल रही है, तो आप देख एक फ्लेम स्कैनर की हेल्प से ही बॉयलर के अंदर की गतिविधियों को देख सकते हैं. ओके गाइस, मैं हिंदी में बता रहा हूँ. So see here, this is the AA elevation which is used for the air, because boiler के अंदर air जाएगी तो उससे कोयला जलता है. See here, this is the AB elevation. These are the 14 elevation of the boiler. ये इसको नाम elevation दिया गया है. This is the AB elevation. This you see this one spot. This is a black spot. This spot is used for the flame scanner. Okay. And this hole is used for the oil gun. Means जब boiler को when you do light up of a boiler, then you take a gun, because initially तो आप कोयले को फायर नहीं करेंगे, पहले तो गन लेंगे. अब मान लीजिए कहीं भी आप कुछ भी गांव में देखे होंगे, कुछ भी जलाते हुए सबसे पहले लोग मिट्टी का तेल या फिर कुछ भी कपूर उपूर जलाते हैं गोहे पे. कुछ भी पंडित वंडित होते हैं, तो इनिशियली तो लकड़ी जल नहीं जाती है ना. तो उसी तरीके से कोयले को पहले तो जलेगा नहीं, पहले तो तेल जलाना पड़ेगा, उसे बॉयलर को टेम्परेचर लाना पड़ेगा, फिर बॉयलर में टेम्परेचर आएगा तो उसके बाद फिर हम कोयला डालेंगे. डायरेक्ट तो कोयला जलेगा नहीं. तो सेम उसी प्रकार से हम लोग वी स्टार्ट विद द ऑयल गन. दिस पॉइंट इज शोइंग द प्लेस ऑफ द ऑयल गन. ओके, क्लियर गाइस? स्पीक लाउडली, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस, गुड. देखो जैसे मेरी आवाज है वैसे आपकी भी आवाज होनी चाहिए. ओके. और जहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा वहाँ मुझे यू कैन स्टॉप मी. ओके, मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ. ओके, ताकि आप मेरी बातों को ज़्यादा गहराई से पकड़ सकें. तो इंग्लिश में बोलता रहूँगा तो फिर हो सकता है ऊपर ऊपर से निकल जाए. ओके ओके गाइस, द राइट साइड ऑफ द प्लेस इज यूज फॉर द टेकिंग ऑयल गन. Here we place a oil gun that we can fire oil, and same here is a igniter rod which can create a spark. गैस के ऊपर एक स्पार्क प्रोड्यूस करते हो तो गैस जलता है, वैसे ही एक स्पार्क होता है, रोड होती है, जिससे कि ऑयल में आग लगती है. ओके, दिस एंड दिस ब्लैक स्पॉट गाइस यू कैन सी हियर. गाइस दिख रहा है आपको Yes, sir. स्टूडेंट्स? ये ब्लैक होल इज यूज फॉर द फ्लेम स्कैनर. You can place here a flame scanner. So guys, आपने बॉयलर के अंदर ऑयल को फायर कर दिया है, तो आप कैसे देखोगे? इस फ्लेम स्कैनर की मदद से ही देखोगे ना कि मेरा कंट्रोल रूम में कि मेरा ऑयल फायर हुआ भी कि नहीं हुआ, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, है ना. So students, this elevation is used for the same oil gun and flame scanner AB, BC, CD, D, EF. You can remember that every time. याद रखोगे ये 6 एलिवेशन फ्लेम स्कैनर और ऑयल गन के और फ्लेम स्कैनर के लिए होते हैं. पहले तो ये पकड़िए. आई थिंक ए बी बी सी सी डी डी ई एफ दिस आर यूज फॉर द फ्लेम स्कैनर, और ए बी सी डी ई एफ यूज फॉर द फायरिंग ऑफ द ऑयल. तो यहाँ पे इन्होंने ना ब्लैक स्पॉट यहाँ पे दिया नहीं हुआ, आप नोट कर लीजिएगा. ए बी बी सी सी डी डी और एफ, ये एलिवेशन मेरे फ्लेम स्कैनर के लिए यूज करते हैं. और ए बी सी डी और एफ ये मेरे ऑयल गन के लिए यूज करते हैं. ठीक है, तो ए बी बी सी सी डी डी ई एफ ये आप नोट कर लीजिए. ये 5 एलिवेशन है मेरे फ्लेम स्कैनर के लिए. ठीक है, यहाँ पे डी में ब्लैक स्पॉट नहीं दिया हुआ है और बीसी में ब्लैक स्पॉट नहीं दिया हुआ है. यहाँ पे फ्लेम स्कैनर होता है गाइस. ठीक है, ये यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, देखिए ना. ये इग्निटर रोड के लिए ब्लैक स्पॉट हो गया, और ये वाला फायरिंग के लिए, और ये वाला हो गया बेल स्कैन के लिए. इन्होंने यहाँ पे 3 ही एलिवेशन दिखाया है, जबकि वहाँ पे हम लोग
पाइप एलिवेशन यूज करते हैं. ओके, नाउ वी मूव द toward the construction side. How a signal can move from the field to control room. So, electronic student, you have to be clear the whole wave or current propagation from field to DCS. Okay, so you are ready for the next speak? Yes, sir. Okay, so electronic student do more focus, and mechanical student do also more focus. सी गाइस, फिल्म स्कैनर होता कैसा है, ये देखिए, ये होता है फिल्म स्कैनर. ये इसके आगे एक, यहाँ से ये बॉयलर के अंदर पार्ट होता है और ये सेंस करता है. ओके, यू कैन सी हियर, ये पार्ट बॉयलर के अंदर होता है. दिस पार्ट इज इनसाइड ऑफ द बॉयलर which is used for the sensing the coal or oil, and this part we insert a cable on this part. This is the electronic module. When we insert a cable which is connected with the DCS, then the current is propagated from here to DCS. Actually, guys, you are already learned about the photodiode principle. What is the use of photodiode? Please tell me, anyone. So you don't remember. I will tell you. Photodiode used for on the photo, like when you get photon, then it convert the photon energy मतलब light energy को वो convert करते हैं electrical energy. Okay, you getting everyone? Yes, sir. So okay, so यहाँ पे this part is inside of the boiler which is using sense, and there are the electronic module, और यहाँ पे इसके अंदर एक कार्ड होता है, इसके अंदर फोटो डायोड होता है. फोटो डायोड यूज फॉर द, जो यहाँ पे मेरे ये सिग्नल मेरे जो फोटोन्स वाले हैं उसको वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मिली एम्पियर के फॉर्म में कन्वर्ट करके मेरे को कंट्रोल रूम में भेजता है वो. ओके, और ये एक पाइप होती है, ट्विस्टेड पाइप, जो कि बॉयलर के अंदर इतनी लेंथ होती है, बर्नर के अंदर जाती है. ओके, ये तो मेरे सारे ये पार्ट होता है. ये स्कैनर हेड बॉडी है, ये लेंस होता है जो कि मेरे बॉयलर के अंदर लेंस करता है, स्प्रिंग होती है, फाइबर ऑप्टिक केबल होती है, प्लग होता है. ओके गाइस, कूलिंग एयर सिस्टम, as we know that the temperature of the boiler is too much high, near about 100 degrees Celsius. When we place the flame scanner inside a boiler, there may be chance of the flame scanner to burn out. So we provide a cooling air that our flame scanner can resist a temperature of 1000 degrees Celsius. Okay, so we require a cooling air. We keep a pressure of the 150 mmWc near about. So guys, now now I would like to tell you that how signal propagate from the control room, and what is the construction of the frame scanner module, which is actually, guys, देखिए, the electronic student may raise the question that sir, how can it visualize the flame intensity in the terms of the intensity of frequency? So I would like to ask with the electronic student that what is the basic difference between the intensity and frequency? Yes, anyone? Anyone? Intensity is like the length, sir, or frequency, number of repetition in a time period. Good. I like that. देखो, मैं आपको एकदम हिंदी में बोल रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुनना, क्योंकि आगे का जो सारा टॉपिक है ना, इसी पे ही डिस्कस होने वाला है, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी पे. देखो दोस्तों, जब मेरा कोल जलता है, कुछ भी जलता है, तो बल्ब एक रोशनी देता है ना. इसको ऐसे समझना, बल्ब जब रोशनी देता है तो अब
कई बार क्या होता है, मान लीजिए एक मोमबत्ती जली, वो बल्ब में रोशनी मतलब उससे सेंस करेगा मोमबत्ती की रोशनी को। सो कितनी कितनी ज्यादा वो मोमबत्ती की रोशनी है, ये तो होगी इंटेंसिटी, इसकी लेंथ। और अब उसमें कितनी तेजी से वो जल रहा है, ये होती फ्रीक्वेंसी। जैसे कि अब कोयला बॉयलर में आपने इंजेक्ट किया जलने के लिए, तो अब कोयला कोयला तो जल रहा है, तो इंटेंसिटी तो देगा ही देगा। हाँ, कई बार पुअर इंटेंसिटी भी हो सकती है, कई बार अच्छी इंटेंसिटी भी हो सकती है, मतलब कि कितना अच्छा जल रहा है कोयला। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि मेरे कितने नंबर ऑफ साइकिल, मतलब कितनी फास्ट जल रहा है कोयला मेरा, समझ रहे हो ना गाइस? मतलब फास्ट चल रहा है, मतलब कितने नंबर ऑफ साइकिल क्रिएट हो रहे हैं मेरे इन 1 सेकंड और इन 1 मिनट। So all the mechanical students also can understand what is the basic difference between the intensity and frequency. Yes, mechanical electrical student, each and everyone have any confusion in this? सर और बताए सर, क्या? What? सर और क्या बताए सर, इंटेंसिटी Your voice is not clear. What you are saying? सर और एक बार बताइए सर, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी। Okay. I will tell you. First of all, the students who getting me, please share their knowledge to this person. Any student who getting me, please share. क्या सर? इंटेंसिटी और ये सर क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी सर? हाँ, कोई शेयर करें इनको। अच्छा, इंटेंसिटी ये शो करता है कि वो कितने अच्छे से बर्निंग हो रहा है, ठीक है, कितना लंबा उसका प्रोपेगेशन है लाइट का। बिल्कुल। और फ्रीक्वेंसी क्या है कि नंबर ऑफ साइकिल्स इन ए टाइम पीरियड, मतलब एक टाइम पीरियड में वो कितने अच्छे से वो बर्निंग हो रहा है। आप व्हाट्स योर नेम गाइस? बीरबल कुमार सर। बीरबल कुमार ना? यस। और जो जिसने पूछा था उसका नाम क्या है? अविनाश मोहंती। अविनाश मोहंती। अविनाश, you are from which branch? इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल, गुड। और आपका? मैकेनिकल सर। मैकेनिकल। सो आपने बताया है, अच्छा बताया है, लेकिन मैं इसको और, आपने थोड़ा बुकिश नॉलेज बताई है, नंबर ऑफ साइकिल इन फ्रीक्वेंसी। मैं आपको ना मैं एकदम पट्टी बताता हूँ डिटेल में। ये कंसेप्ट क्या है, किताब में तो हम पढ़ लेते हैं नंबर ऑफ साइकिल, देखो क्या होता है। एज वी नो दैट, इसने बहुत अच्छा बोला दोस्त ने कि इंटेंसिटी मेरी लेंथ ऑफ द फ्लेम है, कि फ्लेम की मेरी लेंथ कितनी है, कितना मतलब दिख रहा है अच्छा, मतलब एक बल्ब रोशनी तो कर दिया है, मतलब उसकी लेंथ कितनी है। और इसने ये भी अच्छा बोला है कि नंबर ऑफ साइकिल इन 1 मिनट और 1 सेकेंड जो भी है, ये फ्रीक्वेंसी होगी। सो गाइस, यू कैन अंडरस्टैंड दिस। जब मैं कोयला जल रहा है तो कोयले से मेरा कितना फ्लेम पैदा हुआ है, तो वो उसकी लेंथ हो गई। और फ्रीक्वेंसी मेरी गाइस क्या होगा, कितनी तेजी से कोयला जल रहा है, मतलब समझ रहे हैं? मतलब कितनी फास्ट मैं कोयले को झोंक रहा हूं अंदर, और कितनी तेजी से जल रहा है। देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कोयला अगर 3 टन होगा, वो भी उतना फ्लेम पैदा करेगा। और अगर मैं 30 टन फेंकूंगा, मतलब फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा होगी। मतलब कि 1 मिनट के अंदर में कितना ज्यादा मैं कोयला उसके अंदर फेंक रहा हूँ, कितनी तेजी से जल रहा है वो। मतलब काम तो देखिए वही हो रहा है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, लेंथ प्रोड्यूस कर रहा है मेरे, मतलब फ्लेम की इतनी रोशनी है, ठीक है, रोशनी मतलब इतनी है, उसको एम्पलीट्यूड बोलेंगे, ठीक है, इंटेंसिटी बोलेंगे। और वो इंटेंसिटी 1 मिनट के अंदर कितनी बार वो प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। आप समझ रहे मेरी बात को? सारा टॉपिक इसी के ऊपर है। नहीं हेलो, नहीं समझे? सर ये समझ में आया सर। समझ में आया ना कि देखो, कोयला जल रहा है, उसने एक एम्पलीट्यूड क्रिएट किया, उसने एक लेंथ क्रिएट किया, उसने अपनी फ्लेम का, वो तो मेरी इंटेंसिटी होगी वो। और वो कोयला कितनी फास्ट जलता है, मतलब कितनी प्रोड्यूस कर रहा है वो, मतलब वो कितने, ये आवाज कैसे आ रही है? सो लिसन, ये थोड़ा आवाज आ रही है, थोड़ा इसको कम करिए प्लीज। सुना, मतलब जो लेंथ है सिग्नल की, जो उसका एम्पलीट्यूड बोलते हैं, जो इंटेंसिटी बोलते हैं, वो इंटेंसिटी आ रही है, मतलब कोयला जल रहा है, मुझे pretty क्लियर है। लेकिन वो जो इंटेंसिटी लेंथ है, वो 1 सेकंड के अंदर कितनी बार आ रहा है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी।
और याद रखना दोस्तों, कभी भी मेरा जो बॉयलर प्रोटेक्शन किसी ने पढ़ा होगा, वो मैंने हमेशा फ्रीक्वेंसी के ऊपर हम लोग लेते हैं, इंटेंसिटी के ऊपर कभी नहीं लेते। इंटेंसिटी धोखा दे सकती है, फ्रीक्वेंसी कभी धोखा नहीं देती है। सुन रहे हो ना आप लोग सब? यस सर। यस सर। मैं आप लोगों को मैं आप लोगों को ये लाइन स्पेशली हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि इसमें ज़्यादा फोकस कर सको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ। ये केवल वर्किंग बंदे ही बता पाएंगे, और जो बंदे काम कर चुके हैं या 8 साल 9 साल, वही बता पाएगा कि हमने जो भी MFT लेते हैं, ट्रिपिंग लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कुछ भी अबनॉर्मल फ्लेम डाउन हुआ, इंटेंसिटी कम हुई, तो ट्रिप करना यूनिट को, वो सारा प्रोटेक्शन जो होता है, इनका बचाव जो लॉजिक बने होते हैं DCS में, PLC में, वो सारा फ्रीक्वेंसी के ऊपर होता है। इंटेंसिटी केवल एक हम देखने के लिए लेते हैं कि हमारा जल रहा है, इंटेंसिटी के ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं हम लेते हैं। तो यानी कि हमारा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू फ्रीक्वेंसी। समझ रहे हैं ना? यस सर। यस सर। सो गाइस, अब इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी तो मैंने समझा दी। अब ये क्या होता है, देखिए, फील्ड से मेरी 2 मिली एम्पियर का एक सिग्नल करंट की फॉर्म में आता है मेरा कार्ड में। अच्छा, मेरे कार्ड का कंस्ट्रक्शन क्या था, मैं पहले वो बताता हूँ आपको। अब हिंदी में बताऊंगा ताकि आप लोग सब समझें, ठीक है? यस सर। गाइस देखो, मैं बता रहा हूँ, 1 2 3 4, ये 4 मेरे कार्ड होते हैं। मेरे बॉयलर के 4 कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4। There are the 4 corners of the boiler, and each card indicates that the 4th corner of the boiler. चार कार्ड है 4 कॉर्नर के लिए, ठीक है? और इन चारों कार्डों का एक होता है 2/4 लॉजिक। ये मतलब इसमें से मतलब देयर इज अ लॉजिक दैट हमारा फायरवॉल कैसे बनता है। फायरवॉल फ्रीक्वेंसी के ऊपर बनता है, और फायरवॉल का लॉजिक ये होता है कि 2/4, मतलब it means if the two corner have intensity of greater than set in the cold frequency, then it make a firewall. If the frequency is less than which we have set in the card, so it does not give. मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग सेट कैसे करते हैं। तो उसके अंदर DIP स्विच होते हैं, डुअल DIP स्विच में आपको दिखाता हूँ, डुअल इनलाइन पैकेज। अच्छा गाइस, याद रखना, कॉल की फ्रीक्वेंसी हम लोग 30 या 40 सेट करते हैं, और सॉरी 5 सेट करते हैं। ऑयल की फ्रीक्वेंसी हम लोग 25 से 30 सेट करते हैं। कॉल की फ्रीक्वेंसी हमेशा कम होती है। अच्छा, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे सेट करते हैं। उसके ऊपर मेरा ये जो कार्ड है आगे भेजता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी कॉल की कितनी है, ऑयल की कितनी है, ठीक है? तो ये आप लोगों ने देख लिया ना, मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ, सेशन लंबा है। ये देखिए 1 2 3 4 कॉर्नर के लिए 4 कार्ड हो गए, बॉयलर के 4 कॉर्नर होते हैं, है ना? और उसके बाद यहाँ पे एक 5वें नंबर पे आप दिखेगा आपको 2/4 लॉजिक, यानी कि यहाँ से एक लॉजिक प्रोड्यूस करेगा जो कि मेरे 2 कॉर्नर भी मेरे हेल्दी होने चाहिए, जो भी मैं लिमिट सेट करती हूँ। वो जो मैं लिमिट सेट करता हूँ मैं बताऊंगा आपको। दोस्तों, ये एक पावर सप्लाई होता है, जो कि इसमें क्या होता है, इट प्रोवाइड, हम इसको 220 वोल्ट सप्लाई देते हैं, या 110 भी दे सकते हैं। तो होता क्या है, 2 प्रकार की डीसी से प्रोड्यूस करता है, +15 -15 और +5 वोल्ट। +5 वोल्ट यूज ये आवाज कैसी आ रही है? प्लीज डोंट मेक ए नॉइज बिकॉज दिस सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ईच एंड किसका एवरी ऑन है भाई? किसी का ऑन रह गया है सर माइक। सर का ये माइक का वॉइस है वो। हाँ, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, उसको प्लीज शट डाउन देयर माइक। ओके, सो what is this? So guys, please do focus on that. Okay. There are the 4 cards which is used for the all the 4 corners of the boiler, and this 5th card is used for the 2/4 logic. Okay, it means मैंने कोई भी फ्रीक्वेंसी सेट की है, उसमें अब मैं सेट कैसे करते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा इस टॉपिक के बाद। वो मेरे यहाँ पे DIP डुअल इनलाइन पैकेज एक होता है, स्विच होता है, जिसके ऊपर मैं अपनी फ्रीक्वेंसी को और इंटेंसिटी को सेट करता हूँ। मैं कॉल की फ्रीक्वेंसी को 5 हर्ट्ज पे सेट करता हूँ, और ऑयल की फ्रीक्वेंसी को 25 से 30 पे सेट करता हूँ। तो इससे अगर मेरी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, तो 5 के आसपास होती है, तो वो दिखाता है कि ये कार्ड बताता है, क्योंकि मेरे फील्ड से तो एक करंट आ रहा है 2 मिली एम्पियर का। और वो करंट कैसे आता है, मैंने आपको पहले बताया। फोटो डायोड क्या करता है, फोटो मतलब
डायोड होता है जो कि फोटो सिग्नल को, फोटोन की सिग्नल को, सन की सिग्नल को यानी कि फ्लेम की सिग्नल को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। वन इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द मतलब फोटो मतलब जो आपकी जो फ्लेम और सन वाली जो भी मतलब लाइट की एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है। तो उसको 2 मिली एम्पियर को ये आगे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक इंटेंसिटी, एक फ्रीक्वेंसी और देखिए 3 पार्ट में डिवाइड करता है। एक यूज फॉर द इंटेंसिटी विच इज यूज टू विजुलाइज इन कंट्रोल रूम, सेकंड वन इज द कोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थर्ड वन इज द ऑयल फ्रीक्वेंसी. Now I would tell you later on that how we set the frequency in card that when the 2 milliampere, आप लोग समझ रहे हैं ना सारी के सारे मेरी बातें? हेलो यस सर। किसी को कोई दिक्कत? देखो कोई भी दिक्कत होगा मुझे रोकना। देखो फील्ड से बॉयलर के अंदर से हिंदी बताता हूँ एकदम। मेरा लाइट को सेंस किया सेनर ने, वहां से मेरी लाइट उसके अंदर आया, लाइट ने क्या किया, वहाँ एक फोटो डायोड लगा होता है। फोटो डायोड का काम होता है कि लाइट की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो वहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके 2 मिली एम्पीयर का सिग्नल मेरे को यहाँ भेजता है। इन चारों कार्ड के पीछे एक बैक प्लेन में कार्ड जुड़े होते हैं, इसके पीछे टीवी लगी होती है। सिर्फ एक मेरे को 2 मिली एम्पीयर का सिग्नल मिलता है और 2 मिली एम्पीयर के सिग्नल को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। वन इज यूज्ड फॉर इंटेंसिटी, सेकंड फ्रीक्वेंसी ऑयल फ्रीक्वेंसी, थर्ड इज कोल्ड फ्रीक्वेंसी। वो मैं आपको अंदर बताऊंगा कि कार्ड की कॉन्फ़िगरेशन में कि वो हम लोग कैसे सेट करते हैं। तो हमें कंट्रोल में हमें पता चलता है कि ये कौन सी फ्रीक्वेंसी कोल की है, ऑयल की है। अच्छा, ये मेरा है पावर सप्लाई मॉड्यूल। मेरे को इन कार्ड को चलाने के लिए मुझे पावर्स की जरूरत होगी। तो इसमें मैं 2 प्रकार के पावर जनरेटर है, इसको मैं भी दिखाऊंगा आपको बड़ी स्क्रीन में, +15 वोल्ट, -15 वोल्ट और 5 वोल्ट। सो गाइस 5 वोल्ट यूज फॉर द हिज होल सेटअप एंड +15 वोल्ट -15 वोल्ट यूज फॉर द फील्ड। देखिए गाइस, अब जो फील्ड में मेरा फ्लेम्स करना लगा होता है, सी हियर, यू कैन सी हियर, जब हम इसको व्हेन यू ओपन दिस बॉक्स, दिस वन, यू गेटिंग और नॉट? प्लीज स्पीक लाउडली. Yes, sir. Good, good. Your voice is very good. So when you open this assembly, so we see a card, this type of card, okay guys? Yes, sir. देखिए Yes, sir. बोलिए ना, this one is the photodiode. Guys बोलो yes or no? Yes, sir. यस सर। Okay. Yes, sir. जब good. What's your name? मतलब okay, okay, ठीक है। आपका नाम क्या है? लास्ट में जिसने बोला गर्ल्स। Sir, Amisha. Okay, okay. You see, Amisha, that this is the photodiode. Okay, this photodiode is used to convert the जो फ्लेम की एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, सो ये फोटोडायोड उसको करता है। और इसमें देखो आपको देयर आर द 5 वायर्स in which you see that 5 wires are used for the 2 wires plus 15 volt minus and second one is the minus 15 volt, and one wire is used for the milliampere and one wire used for the grounding. Okay, so this is the electronic card. Okay, and this ये जो मेरा ये देखिए मेरा इसका एक कंस्ट्रक्शन होता है, फाइबर ऑप्टिक केबल होती है। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। ये फोटो डायोड है, ये लॉग एम्पलीफायर है, वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर है। ये वोल्टेज टू करंट मतलब ये जो मेरा फाइबर ऑप्टिक से मेरे यहाँ डायोड में पहुँचता है, तो ये फोटो डायोड्स क्या करता है, इसको वोल्टेज की फॉर्म में आगे मतलब वोल्टेज की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। करंट तो कन्वर्ट करेगा नहीं, तो फिर उसके बाद वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर होता है, क्योंकि सिग्नल को मुझे प्रोपेगेट करना है फ्रॉम वहाँ से उन कार्ड्स की असेंबली तक जो कि मेरे डीसीएस में है। ओके, तो गाइस ये जो मेरा कार्ड है वो यहाँ पे लगा होता है। यहाँ ये पार्ट मेरा बॉयलर के अंदर होता है जो कि फ्लेम को सेंस करता है। ये इसके अंदर फाइबर ऑप्टिक केबल है। और ये फिर उसके बाद गाइस यहाँ पे एक वायर जुड़ता है जो कि जिसमें कि मेरे 5 पोर्ट होते हैं, ठीक है, +15 -15 volt. The third one port is the milliampere which is used for 2 milliampere. Fourth port is the grounding purpose. ऐसे करके इसमें 5 पोर्ट होते हैं, 5 वायर होते हैं। मैं बताता हूँ आपको अगली स्लाइड में सारे बताता हूँ कैसे कैसे होते हैं। ये देखिएगा,
ये फ्लेम्स के अंदर के मेरे 4 मॉड्यूल होते हैं, मैंने आपको दिखाया था आपको थोड़ी देर पहले। 2/4 का एक मॉड्यूल होता है, पावर सप्लाई का एक मॉड्यूल होता है ये, ठीक है ना, बात सही है। यहाँ पे 4 मॉड्यूल ये हैं, 5वां 2/4 के लिए होगा, 6ठा ये मेरा पावर सप्लाई के लिए होगा। इसमें कोई डाउट तो किसी को नहीं होगा। अच्छा गाइस, जो मेरे डीसी सोर्स होते हैं, जो मेरे पावर सप्लाई का है वो मेरे +15 वोल्ट -15 वोल्ट देता है फील्ड के लिए, जो मेरे फील्ड में वो लगा हुआ है देखिए, और जो अपने सिस्टम के लिए 5 वोल्ट लेता है। तो वहाँ पे ना 2 फ्यूज लगे होते हैं। मतलब अगर मेरा कभी फॉल्ट आता है ना, किसी मतलब बंदे ने काम किया हो, तो मैं आपको हिंदी में बोल रहा हूँ ताकि आप हर एक चीज को इजिली गेट कर सकें। क्योंकि कभी भी फॉल्ट आता है ना, तो सबसे पहले हम फ्यूज चेक करेंगे कि मेरा पावर सप्लाई का फ्यूज गया कि नहीं। जब मैं फ्यूज चेक करूंगा कि मेरा फ्यूज हेल्दी है, तो उसके बाद मैं पावर सप्लाई चेंज करूंगा कि हाँ मेरा पावर सप्लाई गया है। ओके, तो ये फ्यूज होते हैं। तब उसके बाद घर में भी तो फ्यूज होता है ना, तभी तो आगे आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो ना, क्योंकि पहले फ्यूज उड़ेगा तभी तो मेरा बाकी सिस्टम उड़ेगा। है कि होता है कि नहीं होता इलेक्ट्रिकल इंजीनियर? Yes, sir. हाँ, ऐसे ही तेज बोला करो, ठीक है, गुड। यस सर। अच्छा दोस्तों, ये देखो, ये मेरा ये फ्लेम्स के अंदर की असेंबली है जो कि ऐसी दिखती है, ठीक है। ये मेरा, इसमें मेरे देखिए कितने पार्ट होते हैं, IN, PI, PO, PI1, P2, AF। मतलब IN का मतलब होता है इंटेंसिटी, ठीक है। यस PI होता है पुल इन, 3rd नंबर पे पुल आउट, 4थे नंबर पे ये जो AF है लास्ट में एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, और P1, P2 उसका एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के साथ हम लोग कोल की फ्रीक्वेंसी, ऑयल की फ्रीक्वेंसी उसमें हम देखते हैं। गाइस ये P1 देखिए, P2 क्या हुआ सर? विच ऑफ द वन कॉर्नर, मतलब बॉयलर के 4 कॉर्नर होते हैं, उसके 4 कार्ड हैं, 5वां इसमें 2/4 लॉजिक प्रोड्यूस करता है। और ये मेरा फ्लेम्स करना था, ये मेरा +15 -15 और 5 वोल्ट देता है, मैंने जैसे कि बताया आप लोगों को। ये देखिए गाइस, ये ब्लॉक डायग्राम है फ्लेम्स कैनर का, मेरा सिग्नल कैसे प्रोपेगेट करता है। एज यू नो दैट द सिग्नल मेरा 0 से 2 मिली एम्पियर की फॉर्म में मेरा स्कैनर के हेड से निकलता है वहां पे। उसके बाद मेरा I2V कन्वर्टर लगा हुआ है जो कि मेरे मिलियम को वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। उसके बाद AC सिग्नल मेरे कंडीशनर लगा हुआ है। और मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि ये सिग्नल मेरा 3 पार्ट में डिवाइड होता है, पहला इंटेंसिटी, दूसरा कॉल फ्रीक्वेंसी, तीसरा ऑयल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ मेरे 3 AC एम्पलीफायर लगे हुए हैं गाइस, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो 2 फ्रीक्वेंसी है उसके लिए मेरे वेव शेपर यूज करेंगे, और जो इंटेंसिटी है उसके लिए मैं एनालॉग टू ये करंट कन्वर्टर कर देंगे। और ये मेरा एक माइक्रो कंट्रोलर है। माइक्रो कंट्रोलर के बाद फिर माइक्रो कंट्रोलर सारा काम माइक्रो कंट्रोलर को तो चाहिए ही होता है ये सब काम करने के लिए। उसके बाद ये मेरा फिर VI2 मतलब जो मेरा यहाँ वोल्टेज से फिर करंट की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, फिर इसको 420 मिलीएम्प्स के आगे भेजेगा। और ये मेरा है रिले है जो मेरा फ्लेम 1 फ्लेम 2 की फॉर्म में आगे भेजेगा। ये मेरा यूज करेंगे इसके लिए फॉर द फ्रीक्वेंसी, ऑल फ्रीक्वेंसी और कोल फ्रीक्वेंसी। सर ये वेब शेपर क्या है सर? You are basically belong from the इलेक्ट्रिकल। electrical. So you can search on the net that yeah, who is this? Please silent your phone. Okay, this is a wave shaper you use for the simply as this name indicates the wave for the wave shaping. Sir, you as electronic student or electrical student can study on the net how can a wave। देखिए किसी भी वेव को बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है कि उसको प्यूरिफाई करना है, RC फिल्टर लगाना है, RLC फिल्टर लगाना है, LC फिल्टर लगाना है, कैपेसिटर फिल्टर, कौन सा फिल्टर लगाना है ताकि मैं उस वेव को एक शेप प्रोवाइड कर सकूं, ताकि मेरे माइक्रो, क्योंकि फील्ड से जो मेरी वेव आ रही है उसके अंदर 1000 प्रकार की डिस्टॉर्शन हो सकती है। सभी के सभी हमने पढ़ा हुआ है अपने इंजीनियरिंग में कि उस हार्मोनिक डिस्टॉर्शन को दूर करने के लिए एक वेव को हम इस हद तक प्यूरिफाई करते हैं ताकि हम उसको कंट्रोलर में भेज सकें, ताकि वो उस वेव को हम अच्छे से इंफॉर्मेशन निकाल सके, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी डिस्टॉर्शन, बहुत सारी नॉइज उसके अंदर मर्ज होती है। सो आप वेव शेप का पूरा फंडा गूगल में पढ़िएगा और देन यू कैन ओके सर। इसको अपना कंपेयर करिएगा। ये देखो गाइस, ये मेरा एक कार्ड होता है। मैंने आपको पहले बोला था ना कि कार्ड के अंदर मैं बताऊंगा कि कोल की फ्रीक्वेंसी, ऑयल की फ्रीक्वेंसी कैसे सेट, हाउ वी कैन सेट द कोल फ्रीक्वेंसी एंड ऑयल फ्रीक्वेंसी। You can see there are the 4 DIP switch. This blue color is the for its name is the DIP switch. You can see there the intensity pull in, coil frequency. You can set the coil frequency here. This is oil frequency you can set here, or intensity pull out. So guys, when you set the coil frequency, यहाँ पे एक
वो होते हैं, आप मेरे पास कंट्रोल रूम आएंगे तो व्हेन यू कम अक्रॉस मी देन आई कैन सी और यू विजुलाइज यू दैट हाउ कैन सेट वी सेट द वैल्यू। जैसे कि मैं कॉल की फ्रीक्वेंसी 5 रखता हूँ हर्ट्ज, तो यहाँ पे मैं 5 कैसे सेट करूंगा, मेरे पास आप कभी आएंगे तो मैं डिजिटल फॉर्म में 5 सेट करूंगा, जैसे 0101 डिजिटल फॉर्म में पढ़ा होगा ना, वो हेक्साडेसिमल टू कन्वर्ट करते हैं बाइनरी ऑपरेशन सर। एक नंबर। कौन है आप, क्या नाम है आपका? बीरबल कुमार सर। वाह बीरबल, तुम आप तो एकदम वो बीरबल निकले, क्या बोलते हैं पड़ताल वाले, एकदम तगड़ा पकड़ रहे हो। गुड। सो ये बीरबल जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना 101 तो वो 5 को मैंने सेट करने हैं, तो मैं इसको जैसे यहाँ पे 4 आपको इसमें पोर्ट दिखेंगे, तो 0101 मैं शॉर्ट करूंगा तो 5 हो जाएगा। अब मेरे को अब ऑयल की फ्रीक्वेंसी सेट करनी होती है 40 या फिर 30, हम कई बार 40 भी सेट करते हैं यहाँ पे, तो मतलब कुछ भी सेट करते हैं, वैसे नॉर्मल हम 25 रखते हैं, 25 टू 30। तो 30 करने के लिए इसको आप बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करिएगा और उसको यहाँ पे आप सेट कर दीजिएगा, तो इस लिमिट में जाएगी, फिर सिग्नल यहीं जब इससे ग्रेटर देन जाएगा तभी कंट्रोलर के अंदर लॉजिक, ये कंट्रोलर है, कंट्रोलर के अंदर लॉजिक बना हुआ है, इससे अगर ज्यादा जाएगा तो ये कुल फ्रीक्वेंसी दिखाएगा, इससे कम जाएगा तो ये ऑल फ्रीक्वेंसी दिखाएगा। दिस इज द ये मेरे पोटेंशियोमीटर होते हैं विच इज यूज फॉर द मेरे को अगर गेन बढ़ाना हो या फिर उसका कम करना हो, तो इसमें पोटेंशियोमीटर क्या होता है, पोटेंशियोमीटर आपने इलेक्ट्रॉनिक में पढ़ा ही होगा कि वोल्टेज को कमी या ज्यादा करने के लिए हम यूज करते हैं। तो वोल्टेज किसी फॉर्म में हो सकता है, मेरा कोल की फॉर्म में हो सकता है, ऑयल की फॉर्म, क्योंकि वो क्या होता है वोल्टेज को ही हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं एक्चुअली, तो उससे हम लोग इसका गेन कम ज्यादा कर सकते हैं, कार्ड में फीचर्स दिए हुए हैं। सो ये दिया हुआ है द रिसीव्स डिजिटल सिग्नल कॉरेस्पॉन्डिंग टू फ्लेम 1 ऑन फ्रॉम ऑल फॉर्म को, ये तो वही चीज है, मतलब कि फ्लेम 1 मतलब सभी चारों कॉर्नर से चारों फ्लेम सेंटर को जाती है, और जब 2 या 2 से ज्यादा होता है तो फ्लेम 1 दिखाता है 2/4 मॉड्यूल के लिए, ये होता है फायरवॉल डिशेस में बनता है, ये भी दिखा दिया। ये मेरे 2 रिले लगे हुए हैं कार्ड के अंदर, जो ये 2/4 रिले, जो मेरे 2/4 कार्ड है ना, जो मैं यहाँ दिखाया था आपको, ये फिफ्थ नंबर कार्ड इज द विच इज यूज फॉर द 2/4, मतलब मीन्स मेरे 2 कॉर्नर की फ्रीक्वेंसी अगर हेल्दी हुई तो ये कार्ड मेरा फायरवॉल क्रिएट करके मेरे को वहां पे बताएगा कि मेरा ये हेल्दी है कि नहीं है, और ये 2 पार्ट में काम करता है। इफ अगर हेल्दी होगा तो यहाँ में गाइस बीरबल जी देखिएगा, यहाँ पे मेरी 2 एलईडी जल रही है, एक 2/4 लॉजिक की जल रही है और एक नीचे वाली फॉल्ट की जल रही है, ठीक है? अमीषा जी, यू आर ऑनलाइन और नॉट? Yes, Hello. sir. Okay, good. Yes, So, sir. this actually the whole system is connected to the backplane. So firstly, this signal propagate which inside the backplane. ये सारे सिग्नल बैकप्लेन पे ना एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, उस पर कम्युनिकेट कर रहा है, उसके बाद फर्दर ये आगे कंट्रोल रूम को भेजता है और फील्ड से लेता है। ओके, सो तो ये चारों के चारों कॉर्ड इससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये आप कह सकते हो एक तरीके का मास्टर है, और इसमें मेरा 2/4 देयर आर द 2 रिले 2/4, सेकंड वन द फॉल्ट, ये दूसरा वाला मेरा फॉल्ट का है, यहाँ में आया था। सो ये अंदर का कॉन्फ़िगरेशन है, ये 2/4 रिले, अगर मेरा मान लीजिए कॉल की फ्रीक्वेंसी मेरा मैंने 30 सेट किया हुआ है, 30 से ऊपर जा रहा है, तो मेरे किसी 2 कॉर्नर का, तो मेरे को बॉयलर के अंदर फायरवॉल बना के दिखाएगा कि मेरा सिस्टम हेल्दी है, नाउ यू कैन मूव द प्लांट और रन द प्लांट। इफ मेरी फ्रीक्वेंसी कम है तो ये 2/4 वाला सर्किट नहीं जलेगा, क्योंकि मेरी फ्रीक्वेंसी मैंने सेट की है 30 से ऊपर जाएगा तभी वो कॉल की फ्रीक्वेंसी ऑयल की फ्रीक्वेंसी दिखाएगा, अगर कॉल की दिखानी है तो 5 से ऊपर दिखाएगा। तो जो सेट वैल्यू है उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी जाएगी तो मेरे को वो फायरवॉल बना के दिखाएगा, और वो फायरवॉल को ही मैं लॉजिक में यूज करूंगा। लॉजिक में मीन्स कि अगर मेरा कॉल है पूरा बर्न, अगर मेरे को बॉयलर को ट्रिप, तो यू ऑल नो अबाउट द प्रोटेक्शन परमिसिव और इंटरलॉक, आप लोगों को ट्रेनिंग करते हुए काफी दिन हो गए होंगे, यू नो ईच एंड एवरीथिंग। सो वी यूज फ्रीक्वेंसी इन प्रोटेक्शन में, हम लोग फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं ना कि इंटेंसिटी को, हमेशा ध्यान रखना। कोई भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग कल वो कंपनी में बैठेंगे तो आप लोग ना इंटरव्यूअर से भी पूछिएगा, जो इंटरव्यू में सामने आपसे कोई 2 क्वेश्चन पूछेगा ना, तो इस पे एक क्वेश्चन आप उससे पूछ दीजिएगा, ठीक है? आप सुन रहे हैं ना? यस यस।
जब इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा होगा ना, अगर 5 क्वेश्चन पूछता है तो छठा, अगर 5 में आप फेल हो रहे हैं तो छठा आप ये पूछ दीजिएगा, सर ये बताइए कि लॉजिक इन प्रोटेक्शन में बॉयलर को ट्रिप करने के लिए एमएफटी होता है, तो फायरवॉल बनता है, वो मेरा इंटेंसिटी से बनता है, फ्रीक्वेंसी से बनता है। अगर वो अच्छा सर। अगर वो काम किया होगा तो बता देगा, अगर वो काम नहीं किया होगा, अगर सिर्फ किताबें पढ़ा होगा तो वहाँ फंस जाएगा। वो फ्रीक्वेंसी पे होता है। इंटेंसिटी का सिर्फ हम विजुलाइज करने के लिए देखते हैं। तो उसमें सर डीसीएस जो सिस्टम दिखाता है वहां पर से सर, वहां पर तो उसमें इंटेंसिटी शो करता है सर। नहीं दोस्त, वो केवल इंटेंसिटी मैं कंट्रोल रूम में डेस्क इंजीनियर को दिखाने के लिए कि मेरा कोयला जल रहा है कि नहीं जल रहा। हाँ लेकिन सर। जो मेरा FSSS का लॉजिक है, फर्नेस सेफगार्ड सुपरवाइजरी सिस्टम, और कह सकते हो मास्टर फ्यूल ट्रिप जो MFT आता है। मास्टर फ्यूल ट्रिप में सर उसमें था कि लेस देन 30% इसका सर ऑयल का फ्लेम इंटेंसिटी। हाँ हाँ, तो है ना। उस पे ट्रिप है। हाँ, ट्रिप नहीं, लॉस हाँ ऑफ इसे फ्लेम, लॉस ऑफ फ्लेम फेल्योर इस टाइप का था। हाँ, फ्लेम भेजने का लॉजिक बना हुआ है ना, तो वो लॉजिक वो यस सर। ऑटो में काम करता है। वो मेरी जब वैल्यू, जब मान लीजिए मैंने सेट की हुई है इंटेंसिटी, अब 100 में से मेरी 30% से नीचे जाएगी, तो वो उसको NO दे देगा, जो पहले NC बना रहेगा, मतलब फायरवॉल बना रहेगा। किसी भी 2 कॉर्नर की मेरी फ्रीक्वेंसी 30% से नीचे हो जाएगी, तो उसको वो सर्किट को ब्रेक कर देगा और मेरे डिसीजन में दे देगा कि फायरवॉल अब बन नहीं रहा है, अब आप बॉयलर जिंदा रहने के लायक नहीं है, अब बॉयलर को ट्रिप होना चाहिए। तो मतलब जितने उस भी, वाले गन को कमांड चला जाएगा क्लोज करने का। नहीं वो तो सब जो गन होगा तो गन को चला जाएगा, मिल होगी तो मिल को चला जाएगा, या मिल में मिलो। कोयला। हाँ, FSSS दो को अटैक करता है, कोयला काटेगा या गन को उड़ा देगा। मतलब जो फ्यूल उड़ा देगा तो मेरे बॉयलर रहेगा नहीं, बॉयलर नहीं रहेगा, तबाही नहीं रहेगा, तबाही नहीं रहेगी। लॉस ऑफ फ्यूल में ट्रिप हो जाएगा। यस, एग्जैक्टली। So this is the actual this is the front view of the power supply. This is the power supply. There you can see that there the 3 point plus 15, minus 15, and plus 5 volt. As you already I told to you that we put a 240, or you can say that 110 volt AC supply. As you can see there, the AC power one on, and this is the these all are DC, मतलब ये DC output produce करता है, plus 15, minus 15 और plus 5 volt. As you know that this is the this whole card, इस सिस्टम को चलने के लिए भी एक पावर सप्लाई की जरूरत है। ये 5 वोल्ट इसके लिए इनफ है, ठीक है। और प्लस 15 वोल्ट, माइनस 15 वोल्ट हम लोग फील्ड में भेजते हैं, जिसका डिस्टेंस 100 से 200 मीटर होता है। फील्ड में मतलब जो हमारा बॉयलर होता है डीसीएस से, वहाँ ये प्लस 15 वोल्ट, माइनस 15 वोल्ट जाता है उस कार्ड के अंदर, जो कि मेरा फिल्म सर्वर कार्ड मैंने आपको दिखाया था, तो वहाँ जाता है ये। और इसके अंदर मेरे फ्यूज लगे होते हैं, मैंने आपको बताया है। जैसे कि आप लोग घर में कुछ भी आपका सर्किट होता है, उसके अंदर आप फ्यूज लगाते हैं ताकि पहले मेरे फ्यूज उड़े तभी मेरा सर्किट बचे। ऐसे इसके अंदर भी पहले फ्यूज होते हैं। तो मेरे फ्यूज की रेटिंग 2 मिली एम्पियर यहाँ आपको दिख रहा होगा। जब कभी भी आपको दिक्कत आएगा, सबसे पहले फ्यूज चेक करिएगा। फ्यूज को कैसे चेक करते हैं वो बताता हूँ। मल्टीमीटर से पकड़िएगा, फ्यूज को निकालिएगा, उसको देखिएगा कि NC है कि NO। अगर वो कॉन्टेक्ट बना हुआ है फ्यूज मतलब, तो वो समझ लीजिए फ्यूज सही है। अगर फ्यूज NO दिखा रहा है मतलब ब्रेक हो गया उसका सर्किट, तो मतलब फ्यूज चला गया। ये तरीका होता है मल्टीमीटर से देखने का। ये किसी ने पूछा था ना PIPO क्या होता है, वो शुरू में पूछा था। किसने पूछा था? चलो, जिसने पूछा था, बिरबल। यस सर। अच्छा, तो बिरबल जी क्या होता है ना, जैसे कि फायरबॉल में आपने देखा ना, पुल इन पुल आउट होता है करके। हाँ, यस सर। हम लोग उसमें जो DP स्विच होते हैं, इसमें देखेंगे मैंने कोयल की फ्रीक्वेंसी सेट कर दी, ऑयल की फ्रीक्वेंसी सेट कर दी, ठीक है। इतने से ज्यादा होगा तो मेरा कोयला पड़ा जाएगा, इतने से कम होगा तो मेरा मतलब इतने से ज्यादा होगा तो ऑयल गिना जाएगा। मतलब 5 से ऊपर मेरा कोयला और 25 रखते हैं, 25 से ऊपर कोयला। अब एक बात यहाँ पे मेरे को सेट करनी है, फॉरवर्ड मुझे कैसे बनाना है, इंटेंसिटी पुल इन, इंटेंसिटी आउट। तो मतलब ये जो होता है, ये मेरा पुल इन पुल आउट, ये मेरा इसकी वैल्यू हम टिपिकली 40% रखते हैं, यानी कि 100% इंटेंसिटी दिख रहा है तो मेरे को 40% पे पुल इन पुल आउट मेरा वहाँ पे विजुलाइज होगा। ये देखिए, कोयल की फ्रीक्वेंसी मैंने बताया था 5 हर्ट्ज दिख रहा है, और ऑयल की फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज दिख रहा है। पहले 30 था, अब हम लोग 5 या 3 इतना रखते हैं, क्योंकि कोयला अच्छी क्वालिटी का बुरी क्वालिटी का भी आता है। अच्छा,
ये मैंने आपको बताया था कि हम वो जो स्विच मैंने दिखाया हूँ जो सेट करते हैं वैल्यूज उसको हम डीआईपी स्विच बोलते हैं, डुअल इन लाइन पैकेज। इसको इसमें 8 होते हैं, इसमें 8 पॉइंट होते हैं। आप ना टेस्टर से पकड़िएगा, कुछ नहीं करना उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। जैसे कि मान लीजिए आप 5 रख रहे हैं तो 0101 होगा, 0101, हाँ ठीक। तो 0101 को क्या करेंगे आप ऊपर से पकड़ेंगे और 0 वहां पे एक स्विच होता है, उसको या 0 पे रखिएगा या 1 पे रखिएगा, यानी लेफ्ट घुमाइएगा तो 0 हो जाएगा, राइट घुमाइएगा तो 1 हो जाएगा। बस उसको आगे पीछे करके उसको हम लोग सेट करते हैं। ऐसे हम उस स्विच को सेट करते हैं। अच्छा, ये रजिस्टर की वैल्यू है, ये तो सब। ये देखिए, ये मेरा ना फील्ड से जो मेरा सिग्नल आ रहा है उसका है फिल्म स्कैनर इंटरकनेक्शन। अच्छा, इंटरकनेक्शन डायग्राम है ये। ये मेरा क्या है, देखिए ये मेरे सारी चीजें यूज की हुई हैं। यहाँ देखेंगे आप, ये मेरे ना 4 कार्ड हैं, 1 2 3 4 और 5। 4 तो मेरे 4 कॉर्नर के लिए हो गए और ये 5वां 2x4। ये मेरे ना जो ये मैंने जो ये बैक पेन दिखाया है ना दोस्त, इसके पीछे का जो सर्किट है ना, 4 ये कार्ड हो गए, 5वां ये हो गया और ये पावर सप्लाई होगा। इसके पीछे का जो ये सर्किट है ये है देखिए। तो ये जो ये पार्ट, ये कॉर्नर 1, कॉर्नर 2, कॉर्नर 3, कॉर्नर 4 और ये जो ये 2x4 है और ये मेरा पावर सप्लाई है। ठीक है, अब आप देखेंगे ये देखेंगे कि ये मेरे यहाँ सप्लाई दी हुई है। ठीक है, +15, -15 और -5 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे, मैं कोई एक कार्ड पकड़ लेता हूँ। अरे देखो, ये कार्ड पकड़ लेता हूँ। इस कार्ड के अंदर में कितने सिग्नल दिए हुए हैं देखिए। पहला देखेंगे B+, B-, ये मेरे दोनों हो गए +15 +- मतलब +15 -15 पहले है ना। तीसरे वाले पे हो गया सिग्नल मतलब मेरा 2 मिली एम्पियर इस पे आ रहा है। 0 से 2 मिली एम्पियर। हाँ जी, हाँ जी। और चौथा हो गया मेरा, देखिए शील्डिंग दिखा रहा है। ठीक है, SH मतलब ग्राउंड करने के लिए चाहिए ना, कहीं कुछ मान लीजिए एक्स्ट्रा हो गया तो फिर ग्राउंड तो कर देगा। यस सर। सेफ्टी के लिए ग्राउंड यूज करते हैं। और ये 5 ये ग्राउंड हो गया। उसके बाद होता है NO, NC। ये मेरा क्या होगा, ये कार्ड, ये जो पीछे के 5 है ना, ये मेरी फील्ड से जुड़े हुए हैं दोस्त। 5 तारे मेरी फील्ड से जा रही है 1 to 5। ठीक है, समझ गए ना। और ये सिग्नल, शील्डिंग और ग्राउंड, ये सब मेरे फील्ड से जुड़े हुए हैं। और जो इधर वाले कार्ड है ना, ये मेरे कॉमन NO, NC, ये मेरे रिले सर्किट के लिए है। अंदर रिले भी होता है जो कि यहाँ से निकालता है FSSS के पास। देखो ये जो हमारे कनेक्शन, नॉर्मली क्लोज्ड पेज न्यूट्रल। गुड आउटपुट इंटेंसिटी। गुड दोस्त। तो ये क्या है ना, एक से लेकर 5 तक का जो सर्किट है ना, ये मेरे फील्ड में जो फ्लेम के अंदर लगा हुआ है ना, बॉयलर के अंदर डला हुआ है, उससे ही जुड़ा हुआ है 5 तारे। और जो मेरे ये वाला सर्किट है जो 6 से ये 10 तक है, ये मेरा सर्किट क्या होता है, जो FSSS का पैनल है उसके अंदर जा रहा है। मतलब उसको ये कार्ड एक इनपुट लेता है, एक कार्ड आउटपुट देता है। तो जो ये कह सकते हो कि कार्ड का ये आउटपुट है। मतलब NO हुआ, NC हुआ, ये कार्ड मुझे बना के देगा मेरे को, ताकि अब वो FSSS में जाएगा। अब NO हुआ तो मतलब कि फायरवॉल ब्रेक हो गया, NC हुआ तो फायरवॉल टूट गया। तो ये यहाँ से FSSS पैनल को जाता है कि मेरा अब इसका आउटपुट क्या है। ठीक है, NO, NC मतलब वो फायरवॉल को बनाने के लिए जो लिमिट सेट करते हैं हम लोग 30 या 35 जो भी सेट करते हैं कार्ड के अंदर, उसके ऊपर जाएगा तो वो फायरवॉल बनेगा 2/4 में, तो नहीं बनेगा। तो उसके लिए ये सर्किट यूज करते हैं। यस सर। मतलब सर लास्ट का जो 5 है सर, वो FSSS सिस्टम में जाता है। आउटपुट हो गया और फर्स्ट का 5 जो है इनपुट हो गया। हाँ, इनपुट हो गया। नहीं, ये भी आउटपुट है, लेकिन ये ना फील्ड में जा रहा है। जो फील्ड में जो बॉयलर में जल रहा है ना, उसको
उसको देने के लिए हो गया। अब उसको +15 -15 आप सप्लाई दे रहे हो और वहां से करंट सिग्नल आ रहा है, वो भी उसमें भी इनपुट आउटपुट हो रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मतलब ये सेक्शन अलग है 1 से 5 और ये वाला सेक्शन अलग है, उसमें भी इनपुट आउटपुट है 1 to 5 में। उसमें क्या है +15 -15 आप आउटपुट दे रहे हैं, जो फील्ड में आपका फ्लेम सिग्नल जा रहा है और वहां से एक करंट सिग्नल है जो 2 मिली एम्पीयर का, वो वहां से आ रहा है। अब ऐसे ही इधर भी मेरा है, इधर मेरा लिमिट सेट है, वो NONC वहाँ रिले है, वो उसको करेगा और उसको आगे ऐसे भेजेगा। सर ये फ्रीक्वेंसी जो इंटेंसिटी है सर, जो 30% या 40% रहता है सर, तो इसको मैक्सिमम कितना तक रहेगा कि बेटर रहता है सर? इसका कुछ ऐसा है क्या सर? सुनो सुनो सुनो, क्या बिरबल जी नाम है? यस सर। बिरबल जी, हमें केवल ये क्या होता है ना, सब डिजाइन होता है BHL के हिसाब से, ठीक है? वो कोयले के हिसाब से डिजाइन होता है कि मेरे कितने GCV कोयला है, उस कोयले के GCV से, जैसे कि मान लो बहुत अच्छा GCV है तो 5 हर्ट्ज हम बढ़ा सकते हैं, 5 हर्ट्ज हम कम कर सकते हैं। अच्छा सर। ठीक है, तो लेकिन हमारा डिजाइन रहता है कि हमें अप्रोक्सीमेटली 30, हमने ऑयल के लिए 25 या 30 रखना है और कोल के लिए 5 रखना है। 5 अब बहुत अच्छी क्वालिटी का तेल आ जाता है तो हम उसको 5 रुपये नीचे कर, लेकिन ये सारा का सारा सिस्टम डिजाइन होता है, इसमें बहुत कुछ चेंज करने का अपना नहीं रहता है। जो BHL बोलता है उसके हिसाब से हमको करना होता है। ओके सर। तो guys, I think you should सर फ्लेम स्कैनर जो है सर, जैसे 2-3 टाइप का होता है सर, जैसे कि IR होता है सर, इंफ्रारेड, एक होता है सर विजिबल ऑप्टिकल फ्लेम स्कैनर, और एक होता है सर UV फ्लेम स्कैनर। तो इसमें सर किस टाइप का यूज होता है सर यहाँ पर सर? देखिए, आप पहले तो समझिए कि अल्ट्रावायलेट और IR रेज हमारी कहाँ होती है और बॉयलर में जो कोयला जलता है वहां से हमें कौन सी रेज निकलती है। हाँ सर। इस क्वेश्चन का आंसर आपके क्वेश्चन में ही है। हाँ सर, मैं इसको रिलेट नहीं कर पाता हूँ सर, इसीलिए पूछ रहा हूँ सर। नहीं नहीं, ये क्या है ना, देखिए UV रेज अल्ट्रावायलेट रेज कहाँ से आती है, इंफ्रारेड कौन सी होती है, और फिर उसके वो बाद तो रे की इंटेंसिटी हो गई सर, कितना उसका नैनोमीटर है उसका। वो आपका क्वेश्चन क्या है? मतलब किस टाइप का ये यहाँ पर यूज किया जाता है सर फ्लेम स्कैनर? देखिए देखिए, ये लिखा हुआ है इसमें, UV, IR एंड विजिबल लाइट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फ्लेम स्कैनर। तो UV टाइप का जो रेंज होता है मेजरमेंट के हिसाब से 10 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर होता है, विजिबल लाइट के हिसाब से 380 नैनोमीटर से 740 नैनोमीटर होता है, और IR के हिसाब से 700 मतलब नैनोमीटर से 1 mm तक होता है। तो ये सारे मेरे स्पेक्ट्रम होते हैं मेजरमेंट करने के, ये डिफरेंट टाइप के फ्लेम स्कैनर होते हैं। तो गाइस, मतलब कि इसमें ये मेरे फील्ड में लगा होता है, देखिए तो मैंने बता ही दिया मैंने आपको, फोटो डायोड है, ये फील्ड वाला पार्ट है फोटो डायोड। देखिए फील्ड में क्या होता है, सिंपल, मेरा एक फील्ड में फ्लेम स्कैनर लगा हुआ है। फ्लेम स्कैनर मेरा फोटो डायोड क्या कर रहा है, फ्लेम को मेरा आगे वोल्टेज टू करंट फॉर्म में कन्वर्ट करके मेरे को अंदर भेज देगा। वो 2 मिली एम्पियर का सिग्नल जो है वो मेरे इन 5 कार्ड में आ रहा है, चारों कॉर्नर से 4 कार्ड में, और 5वां कार्ड उसको बना रहा है। चारों कार्ड में से 2/2/4 हेल्दी कि नहीं, ये मोटा मोटा है। और उसमें क्या है, मेरे 3 पार्ट में वो मेरा सिग्नल डिवाइड हो रहा है जो 2 मिली एम्पियर का है। वन ऑफ द इंटेंसिटी विच इज यूज फॉर द विजुअलाइजिंग द इंटेंसिटी ऑफ द कोल और ऑयल, और सेकंड वन द कोल फ्रीक्वेंसी, और थर्ड वन इज द ऑयल फ्रीक्वेंसी। ये मेरा काम कौन करता है, एक मेरा उसमें माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, उसके अंदर मेरा डिफरेंशिएटर है, उसको डिफरेंशिएटर क्या करता है, उसको 3 पार्टों में डिवाइड स्प्लिट करता है। ये देखिए इस डायग्राम में है ना, ये साफ साफ दिख रहा है, ये 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है माइक्रो कंट्रोलर। तो यही माइक्रो कंट्रोलर आगे मेरा
निकाल देता है आगे कोल की फ्रीक्वेंसी, ऑयल की फ्रीक्वेंसी। ये मेरा कार्ड है जिसमें हम चारों चारों चीजें सेट करते हैं, इंटेंसिटी, कूलिंग इंटेंसिटी, कूलिंग फ्रीक्वेंसी, ऑयल की फ्रीक्वेंसी। इस स्लाइड में आपको शेयर कर दूंगा। ये मेरा पावर सप्लाई होता है, इसमें 15 प्लस 15 वोल्ट माइनस 15 वोल्ट दो चीजें इशू करता है, प्लस 15 माइनस 15 और प्लस 5 वोल्ट। प्लस 5 वोल्ट खुद के लिए इशू करता है जो कि मेरे कार्ड लगे हुए हैं जो मेरे कंट्रोल रूम में है, और प्लस 15 माइनस 15 फील्ड में भेजता है फ्लेम स्कैनर को, चारों कॉर्नर में फ्लेम स्कैनर लगे हुए हैं मेरे। ये डीआईपी स्विच होता है, इसमें ऑन ऑफ करने की फैसिलिटी होती है। बाकी क्या है ना, you all the student come to me in control room, then in practically how we can set the DIP switch, I visualize you and how these 4 cards are communicating with each other, and how 2x4 module communicate with all the four cards, and how the power circuit give power to this plus 5 volt to the all card, and plus 15 minus 15 to the field. And also I can visualize you all the film scanner in field, and also with the help of measurement I can show you that the 2 milliampere, approximately maximum 2 milliampere signal come from the photodiode to our this full card. So guys, this is the end of the session. I think this is the flame scanner topic is very huge and very depth. You need to be focused to all the electronic part and do Google to each and every things like wave, what is the work of the wave shaper, what is the work of the amplifier, what is the work of the V2I converter or 2I2V converter, what is the work of the photodiode, and what is the this all the you to have Google to each and every topic, and how my one current signal of maximum 2 milliampere can differentiate in 3 parts like intensity, in coil frequency, in oil frequency. With the help of microcontroller you have to be, I will provide you manual, मैं आपको manual provide कर दूंगा. I can show manual. Listen, this is a just a minute. हाँ सर, अनुपम बोल रहा हूँ। यस सर, बोलिए। तो कंप्लीट है सर? हाँ, इनको मैं ना मैनुअल शेयर कर देता हूँ, और ये क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन भी शेयर कर देता हूँ। हाँ सर। इनको कोई भी दिक्कत होगी इनको प्रैक्टिकली मेरे पास आएंगे। हाँ सर। और मैं इनको पूरे विजुलाइज करा दूंगा, हर एक चीज मैंने सबको बता दिया है, सारा टॉपिक क्लियर कर दिया है। अच्छा सर। कुछ पेंडिंग नहीं है फिल्म चैनल में मेरे हिसाब से। हाँ सर, किसी का कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए फिर से एक बार। Yes student, you have any doubt? I will share you. सर स्टार्टिंग में सर, yes स्टार्टअप में जब ऑयल फायरिंग चल रहा होता है सर, yes ठीक है सर, तो उस समय फ्लेम इंटेंसिटी मान लीजिए शो कर रहा हो सर 25, तो जब कोल फिर फीड करने लगते हैं तो उस समय फ्लेम इंटेंसिटी किसका शो करता है सर? उस समय कैसे डिटेक्ट करते हैं कोल का है या फिर इसका ऑयल का है? बिरबल जी, डोंट get confused in term of coal and oil. This is the work of our microcontroller can differentiate between the coal and oil. And how can it differentiate? Based on the setting of the DIP switch, that we keep setting our oil at 25 or 30, and second one is the coal frequency used, we set at the value of 5. Now your question is how I can differentiate? Yes. हमको डिफरेंशिएट नहीं करना है. दिस इज द वर्क फॉर द यूज फॉर द मेकिंग अ फायरवॉल which is used for the FSSS, which is based on frequency, and your question is for the intensity, and intensity has no meaning. Intensity is only meaning to visualize the control room or a desk engineer to visualize the my coal is burning or not. Intensity का कोई मतलब नहीं है. इंटेंसिटी का सिर्फ इतना मतलब है कि मेरा कोयला जल रहा है कि नहीं जल रहा, बस, और कोई मतलब नहीं है. बाकी सब काम फ्रीक्वेंसी में मेरे कार्ड में जो मैंने सेट की हुई है उससे मेरा फ्रीक्वेंसी, उससे मेरे फायरवॉल बनता है, वो मेरे FSSS और MFT के लिए यूज होता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एनीवन यू हैव एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू सर. कोई किसी को दिक्कत, किसी को डाउट? इफ एनीवन, एनीबॉडी हैव एनी डाउट रिगार्डिंग
after the ending of the session, after the ending of the training, the whole time, every hour, every night, every morning, I will be available on my cell phone. You can directly ask with me, but you have to be first learning with the manual or slides, or do Google each and every topic, wave shape or amplifier, all things, etc., etc. We correlate in each and everything and do practice, and then you can contact on my cell phone. I will each and everything again. I can tell you. Okay, guys. Okay, sir. I hope you should clear about the electronics part, and you should have also clear about the frequency और intensity का जो गेम है, ये भी मैंने आपको अच्छी खासी समझ में आ गया होगा, जो कि चलता है और इसको समझने में बहुत साल लगते हैं कि गेम इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी क्या है, जो कि मैंने आपको 1 घंटे में बता दिया। और मेरा यूज FT+ में और मैफ्टी में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। और ये मुझे लगता है कि आप किसी न्यू कमर से पूछेंगे जिसका एक्सपीरियंस 5-7 साल है, वो भी बता नहीं पाएगा, लेकिन ये मैंने निचोड़ बता दिया आपको। अब इसमें क्या है, आप मैनुअल में आपको दे दूंगा और प्रेजेंटेशन दे दूंगा, दोनों को आप पढ़ेंगे डेप्थ में, तब आपको और क्लियर होगा जो मैंने बताया। यस और जो भी नहीं क्लियर होगा, आप मेरे को सेल फोन पे कभी भी अमीषा जी, आपको भी कभी भी किसी भी वक्त कोई मतलब ट्रेनिंग के बाद भी, जॉब मिलने के बाद भी, पहले भी कभी भी आपको पूछना हो, आई विल बी अवेलेबल ऑन माई सेल फोन एंड व्हेनेवर यू। और मेरे प्लांट में भी आइएगा, मेरे कंट्रोल रूम में भी मैं आपको घुमाऊंगा भी, आपको हर चीज की सेटिंग करते कैसे करते हैं, क्वालिफिकेशन ईच एंड एवरीथिंग आई विल शो यू, फिल्म स्कैनर आई विल शो यू, फोटोडायोड आई विल शो यू, all the plane, back plane and assembly I will show you, each and everything I will show you. Okay guys, any doubt? No sir. Okay, Thank you sir. Okay, thank you, bye bye. Okay sir. Thank you, sir. Actually मेरा टुडे मेरा नाइट शिफ्ट था, मैंने नाइट शिफ्ट के बाद मैं सोया नहीं, और आप लोगों का Okay लेक्चर sir, लेना था। रेस्ट कीजिए सर। हाँ, और मैंने कहा कि नहीं, मैं आई कैन डिलीवर 2 or 3 hours, तो देयर विल बी थोड़ी बहुत अगर एनर्जी में कमी रह गई होगी तो दैट विल, मैंने अपनी तरफ से नहीं सर, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए सर। मैंने चीजों को इंग्लिश में नहीं पकड़ा, हिंदी में पकड़ा, ताकि हर चीज को हिंदी में मैं बता सकूं, मतलब क्लियर कर सकूं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है और इंटेंसिटी क्या होती है और मेरे लिए यूजफुल क्या है। और मेरा उस कार्ड उनको 3 पार्ट में डिवाइड करता है, और वो माइक्रो आप पढ़ेंगे, समझेंगे, आपको सब चीज समझ में आएगी। ये मेरा प्रॉमिस है, और मेरे वर्ड्स ध्यान रखिएगा, ठीक है? मैं ओके, ऑल गाइस, बाय। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू sir. सर। थैंक यू सर तो फिर सर आपके पास तो मेरा आईडी है ना सर? व्हाट अमित सर, मैं अनुपम बोल रहा हूँ। बोलिए। हाँ, बोलिए ना। अब बोल रहे हैं कि मेरा मेल आईडी तो आपके पास है। हाँ, मैं शेयर कर देता हूँ, आप सभी बच्चों को शेयर कर दीजिए। हाँ सर, हाँ सर। प्रेजेंटेशन भी और मैनुअल भी। अच्छा। और इनको बोलिएगा कि कभी भी दिक्कत होगी, मेरे सेल फोन मेरा हमेशा अवेलेबल रहेगा, केवल फिल्म के लिए, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, कोई भी टॉपिक अगर इंस्ट्रूमेंटेशन पावर पॉइंट से रिलेटेड है उसके लिए। हाँ सर, एकदम ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, बाय बाय, थैंक यू।